Welcome to this very special session of the HT Next Summit of Hindustan Times. On behalf of the whole team of HT, I'd like to welcome two amazing guests for this special session. One who redefined superstardom and versatility in Hindi cinema 3 decades back and has remained quite the superstar in another avenue of public life that he decided to pursue when he decided to change gears, that is. And a brilliantly talented new age star of today who inherited her acting genes from him but has completely made a mark for herself with some amazing cinema that she has done. A big welcome and a big honor to have with us today Shatrughan Sinha and Sonakshi Sinha. Thank you. Thank you, Shatruji. Thank you, you Sonakshi, for so joining us. much, Sonal. Our pleasure. In fact, we want to thank you for bringing us both together on the same platform. It's never been done before, digitally. I have to say, as we were discussing prior to the session, this is quite an honor and privilege for us, and a very happy occasion to actually to know that the both of you are connecting on Zoom for the first time. Yeah. Thanks to you and Quite thanks to the exciting. HT Summit. Thank you, sir. So, Shatruji, I and Sonakshi, the theme for our summit, I mean, it's called HT Next, and it's all about the millennials and how they view different aspects of life. And cinema being one aspect which is predominating in our country, as you know. We really wanted two personalities to come and talk about the then and now of Hindi cinema, and it's our sheer fortune that the two personalities happen to be linked both in a professional but a more deeply personal way. And I think there's no better way for us to bring out the contrast than to have you both who've seen it through all. So Shatruji, mera मैं पहला I'd like to start with you because it's then and now. Shatruji, मेरा जी पहला क्वेश्चन आपसे ही है कि हम बात कर रहे हैं then and now की, so the then of cinema and the now of cinema. So सबसे पहली बात ये है कि you have seen times where you know there were superstars, the era of superstars, because ये होता था कि अगर एक big hero finalize हो गया, and I'm using the term hero particularly in a gender way here, hero finalize हो गया है तो बाकी सब कुछ उसके around fall कर जाता था, everything else would fall into place. That's no longer the situation now, because now you see we've entered the age of ensemble casts. A director is as important as a script writer, as the heroine, as the hero, as the supporting cast. So ये change को, how do you see this change? आई वुड से चेंज फॉर द बेटर. देखिए, पहले भी आपने कहा ना, सुपर स्टार जो हैं हीरोज होते थे, पर कई बार डायरेक्टर्स भी होते थे. अगर थोड़ा पहले चले जाएं तो चाहे के आसिफ हो कि बिमल रॉय हो कि ऋषिकेश मुखर्जी हो या दुलाल गुहा हो, जो दुश्मन बनाई, दोस्त बनाई, राजेश खन्ना थे उसमें, या दोस्त में मैं और धर्म जी थे उसमें, लेकिन या हेमा मालिनी थी उसमें. लेकिन इनके अलावा जो है ये डायरेक्टर का फिल्म कई बार बोलती थी पहले. आज जो है टीम वर्क बोल रहा है. आज जो है पूरी कंप्लीट फिल्म जो है उसमें काफी बदलाव हो गया है, बनने के तरीके में, बनाने के तरीके में, काम करने के तरीके में. अगर पहले की तरह शायद कमिटमेंट उतना ना हो, लेकिन आज मेहनत तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और खासकर हमारे न्यू कमर्स और खासकर यंगर जनरेशन, यंगर स्टार्स लाइक सोनाक्षी और बहुत सारे लोग सामने आए हैं. वो गजब कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मिलजुल कर रहे हैं. अब एक आदमी को बड़ी मुश्किल से क्रेडिट मिल रहा है, क्योंकि इसके पीछे आपके पूरा पूरा आपका टीम वर्क होता है. और जैसा आप देखती हैं कि जिस तरह से अभी लोग कर रहे हैं, चाहे और स्टार एक्टर्स हैं जो अभी स्टार्स बनने की राह पे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मनोज वाजपेयी या फिर पंकज त्रिपाठी. लेकिन इन लोगों को सबका सहयोग, सबकी ब्लेसिंग, सबका साथ ही सबका विकास हो रहा है. इसलिए अब आज का स्टोरीज में देख ली, पहले अगर जितना सब कुछ था, आज ये टेक्निकली इतना एडवांस्ड हो चुके हैं हम लोग पहले के मुकाबले. लेकिन टेक्निकली एडवांस होने के बावजूद कई बार हमें वो सोल की कमी दिखाई पड़ती है, वो ठहराव नहीं दिखाई पड़ता है, वो आज वो कमिटमेंट नहीं दिखाई पड़ती जैसे पहले होती थी. फॉर एग्जाम्पल, कमिटमेंट का जहां मैंने कहा, जितने बड़े बड़े और जितने अच्छे अच्छे कलाकार हैं, आज भले वर्कशॉप में कई जगह जाते हैं या बुलाए जाते हैं, लेकिन पहले जो है
कि डायरेक्टर के साथ बैठ के महीनों महीनों काम करते थे। वर्कशॉप का दूसरा नाम था, चाहे रिहर्सल के नाम पे हो या चाहे हमारे सिंगर्स हों, चाहे रफी साहब हों ग्रेट जीनियस, या मुकेश जी हों, या कि किशोर कुमार, या लता जी हों इतनी महान गायिका, आशा जी, ये तमाम लोग पहले म्यूजिक डायरेक्टर्स के यहाँ जाके, या म्यूजिक डायरेक्टर आते थे उनके यहाँ और बैठ के 7-7 दिन, 10-10 दिन, एक महीना रिहर्सल करते थे। तू जी गंगा की मौज में, जमुना की धारा, या जितनी मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, यानी ये सब जो कमिटमेंट था उस वक्त, वो शायद आज इस कॉर्पोरेटाइजेशन के वक्त में, घड़ी में, कहीं मिसिंग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिजल्ट में ये लोग मार खा रहे हैं। आज जैसे जैसे फिल्में लोग दे रहे हैं और बना रहे हैं, वो शायद पहले इमेजिन में नहीं किया जा सकता था। उसमें बहुत सारी बातें हैं, साथ साथ उसमें पैसा, सपोर्ट, ये सारी बातें हैं, तो फर्क तो पड़ा है। मैं कहूंगा ओवरऑल बेहतरी के लिए ही पड़ा है फर्क। जी बिल्कुल। सो जैसे आपने कहा कि उस टाइम भी बहुत मेहनत होती थी और तभी लेजेंडरी चीजें निकलती थी। बट सोनाक्षी, कमिंग टू यू एंड यू रिप्रेजेंटिंग टीम नाउ हियर, एंड योर डैड इज सेइंग दैट अभी थोड़ा पुराने जमाने में लोग मेहनत ज्यादा करते थे, अभी कॉर्पोरेटाइजेशन की वजह से प्रोफेशनलिज्म आ गया है, एंड देयरफॉर थिंग्स आर स्मूदर। व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट एज अ न्यू एज एक्टर? I wouldn't call it commitment. I think what he's trying to say is कि preparation ज़्यादा होती थी because like he said technology उस time पे इतनी advanced नहीं थी। जितनी मेहनत वो एक perfect product बनाने में है, उतनी कम लगती है क्योंकि हम technologically बहुत ज़्यादा advanced है। मतलब for example, our singers have all the means and ways in which to make a song sound really really nice. Our music directors have way more tools, to compose their songs. Filmmaking, for example, cameras में कितनी advancement हो चुकी है। I think वो एक advancement की वजह से I think हमारी so called मेहनत कम हो गई है, but commitment वही की वही रहती है। अब how we know to work, जिस तरह से हम काम पर गए हमें वही आता है, एंड जो मीन्स हमें मिले गए हम उसी दायरे में काम कर रहे हैं। So I wouldn't say commitment is less, but yeah, I know exactly what he's trying to say. उस टाइम पे I Yeah, think जिस तरह से फिल्में बनती भी थी, इट यूज्ड टू टेक वेरी वेरी लॉन्ग। आज that's true. मैंने आपको कहा मैं यहाँ पर हूँ 45 डेज में मैं स्टार्ट टू फिनिश मेरी फिल्म खत्म हो जाएगी, क्योंकि वी आर इन दैट एज वेयर वी आर एबल टू डू दैट, वी आर एबल टू कंप्लीट दैट। मुझे याद है पापा कहते थे कि वो एक टाइम पे 4-4 फिल्मों की शूटिंग करते थे, एक सेट से दूसरे सेट पर जाते थे। एक फिल्म को एक 1.5 साल लग जाता था, कभी कभी 3 साल लग जाते थे। तो आज के जमाने में वो होता नहीं है, because of how we've advanced in terms of technology and the way of working and stuff. So I don't think it's a bad thing in any way. I just feel we're like moving ahead with times. It's just different. It is definitely not bad or good as compared to Exactly. previously. It's just different. Yeah, But yeah. Sonakshi, how particular are you as an actor in ensuring that there is a bound script? Because एक ये भी शत्रु जी आपको याद है बहुत इस बारे में बात होती थी कि आजकल के एक्टर्स तो बाउंड स्क्रिप्ट मांगते हैं, जो उस टाइम के सुपरस्टार्स भी कभी इंसिस्ट नहीं करते थे। बिकॉज अगर एक सर्टेन डायरेक्टर ने आपको एक फिल्म ऑफर की है, वो मनमोहन देसाई जी हो, सुभाष घई हो, इतना ही काफी था that they must have decided the best for you as an actor, and then that is how things would start. But these youngsters are very particular about wanting a bound script. So first let's come to you. So actually, how particular are you? And then Shatruji, what do you have to say to that? A lot rides on you and the kind of work that you do today. Our world has become so small or big. I don't know what to say, but like people have so much access and they have so many options. तो अगर आप सही काम नहीं करते हैं तो they'll very easily drop you like a hot potato and be like, okay fine, I'll put my energy and time and interest in watching somebody else. So as an actor I think you have to be very particular in the kind of work that you're doing. Bound script, yes, of course, everybody likes to know what you're getting. कहानी सुनी है कि दोस्ती यारी में, रिश्तेदारी निभाने में, lot of people have just said yes, but I think at that point of time exposure भी इतना कम था। जब आप एक स्टार बन जाते थे, जो मिल जाती थी वो आपसे बहुत लॉयल होती थी,
तो आप मतलब जो भी काम करे, I feel like they were very very loyal to you as the audience. वो I think ये जमाने में उतना उतना नहीं है. So you have to be very particular with the kind of work you're doing. सोच समझ के तो शत्रुजी, सोनाक्षी सिंह दोस्ती यारी निभाने में, रिश्तेदारी निभाने में फिल्में साइन हो जाती थी. नाउ योर टर्न टू टेल अस व्हाट यूज्ड टू हैपन. नहीं, पहले तो मैं ये कहूंगा कि सोनाक्षी ने जो कहा, मैं उससे बहुत हद तक सहमत हूं. मैंने जनरली कहा था कमिटमेंट का, लेकिन प्रिपरेशन ठीक कहा. इतने जो पहले प्रिपरेशन होती थी ना, वो शायद आज नहीं होती है, बहुत कम जगहों पे होती है. जहां तक इसीलिए ओवरऑल कमिटमेंट की कमी पाई जाती है, ओवरऑल जनरली स्पीकिंग. लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा, जैसे सोनाक्षी की फिल्म थी लुटेरा, जो आज तक आप तमाम लोगों को, मुझे लगता है मैंने शायद चंद पिछले 20, 25, 30 सालों में चंद फिल्में देखी होंगी जिसने इतना बढ़िया इम्पैक्ट, इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस, सोनाक्षी का इतना बढ़िया रोल और परफॉर्मेंस ने, ये सारी चीजें और फिल्मों का फिल्म मेकिंग टोटल एक जबरदस्त उसने इंप्रेशन छोड़ा है. और मैं कहूंगा ऑलमोस्ट ग्रेट की कगार पे जाके. तो उसमें कमिटमेंट थी, सही बात, उसमें सोल भी था. ऐसी और कुछ फिल्मों में हुई होगी. लेकिन एक चीज जो हाँ सोनाक्षी ने कहा कि पहले साल भर या 3 साल लगते थे फिल्मों में, ये जरूरी नहीं है कितने साल या कितने टाइम हम लगाते हैं फिल्म बनाने में. अंतोगत्वा फिल्म कैसी बनाते हैं उस पर डिपेंड करता है. मुगले आजम को तो करीब 14 साल लग गए थे जी. लेकिन मुगले आजम का आज तक तोड़ या मुगले आजम जैसी बेजोड़ फिल्म तो आज तक वो दूसरी नहीं आई मेरा ख्याल है. गंगा जमुना को में भी शायद 2-3 साल लग गए थे दिलीप कुमार की, या मदर इंडिया महबूब खान साहब की थी. लेकिन द रिजल्ट दिया, भले कितना भी वक्त लगा हो, वो आज तक आपको लगता है कि ये चंद क्लासिक्स जो हैं या चंद फिल्में नेशनल इंटरनेशनल सिनेमा पे जो फिल्में आई, उनमें से चंद बेहतरीन फिल्में जो आज तक आपके दिलो दिमाग पे छाई हुई हैं, जैसे मदर इंडिया, मुगले आजम, आपको पहले वाली देवदास, या ये दिस वन अभी आपके सामने, या जैसे लुटेरा भी अब श्रेणी में आएगी. ऐसे तो ऐसी जो फिल्में हैं, उसको आप ये नहीं देखते कि टाइम कितना लगा उसमें. आप ये देखते हैं मुगले आजम जैसी फिल्मों को कि कैसे फिल्म बनी, किस कमिटमेंट से बनी, कितना लोगों ने उसमें अपने टैलेंट को सही मामले में उभारने का और निखारने का मौका दिया, और डायरेक्टर पे कितना विश्वास रखा. आपने अभी कहा कि डायरेक्टर जो हैं पहले जो हैं वो स्क्रिप्ट हो ना हो वो हर धड़ से हाँ कह देते थे. हाँ, कई बार ऐसा हुआ है. लेकिन कौन से डायरेक्टर्स जो ट्राइड, टेस्टेड और सक्सेसफुल थे? मनमोहन देसाई जैसे आपने कहा, तो लेट एंड ग्रेट मनमोहन देसाई. उसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको आप स्क्रिप्ट ना भी देखते थे तो उन पे विश्वास होता था कि नो, ही इज केपेबल, ही विल डू इट, ही कैन मेक इट एंड ही कैन गिव द रिजल्ट. तो ऐसा हुआ है. आज जो है बच्चे प्रोफेशनल ज्यादा है, हमारे बच्चे हैं, यंगर जनरेशन, ये सोनाक्षी हैं, बाकी लोग हैं, और ये लोग सही करते हैं कि ये देखते हैं कि स्क्रिप्ट कितनी डेटें लगेंगी उसमें, कितना, क्योंकि उनको अगली पिक्चर भी उसी हिसाब से प्लान करना होता है. तो ये सारी चीजों को चाहते हैं कि स्क्रिप्ट पे हो. आज जैसे कॉन्ट्रैक्ट इनका होता है या कॉन्ट्रैक्ट जैसे साइन किया जाता है, वो हम लोग के वक्त में ऐसा थोड़ी होता था. अब तो एक लॉयर, दूसरा लॉयर, जो सिनेमा का अलग लॉयर होता है वो सारी तो बहुत डेवलपमेंट हुई. और मैं कहूंगा प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से या प्रोफेशनल्स के हिसाब से ये मेरा ख्याल है बहुत अच्छी उपलब्धि है, बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट की तो हमेशा कदर करनी ही चाहिए. जी बिल्कुल. आई थिंक वो कॉर्पोरेट कल्चर ने कुछ अच्छी चीजें और कुछ हाई पॉइंट्स, कुछ लो पॉइंट्स दिए हैं, but iconic products as we call them, or iconic cinema remains iconic. And Sonakshi, how proud you must be when you hear your father take Lutera's name in the same breath as some of the most iconic cult films, because that's so absolutely true. I think Paki's character would I remain for know, the rest of your life as your best speechless right work. now. I don't even
I know. I mean, I'm absolutely speechless right now. He's taken Lutera's name in the same breath as these magnificent films, and it's a really proud moment for me right now. That's true. But एक बहुत interesting point जो शत्रु जी ने उठाया, which is about how काफी वक्त लगता था उन फिल्मों को बनाने में, एंड वक्त की कोई इतनी टेंशन लेता नहीं था कि वो 2 साल लग रहे हैं, 3 साल लग रहे हैं, बिकॉज फिल्म आखिर में जो है वो मतलब एक कंप्लीट फॉर्म में बन के निकले। पर शत्रु जी, इसमें एक पैराडॉक्स है। जैसे आप जब 70s 80s में शूट किया करते थे, एंड सोनाक्षी मेंशन दिस, you would do multiple films at the same time, you would go from shift to shift। आजकल के एक्टर्स इस बात को बहुत प्राउडली कहते हैं कि मैं 1 साल 1.5 साल अगर जो फिल्म कर रहा हूँ तो मैं उस फिल्म के बियॉन्ड सोचता नहीं हूँ, कमरे में बंद हो जाता हूँ, एंड आई जस्ट गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। तो आप इनमें से किस मॉडल को पर्सनली अपने दिल के करीब मानते हैं? 4 शिफ्ट इकट्ठा करना या एक फिल्म को 2 साल तक उसी कैरेक्टर में रहना? नहीं, आप जो कह रही हैं सही कह रही हैं कि 4 शिफ्ट इकट्ठा करना कोई अच्छी बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई बार तो मजबूरी में होती थी, और मजबूरी सिर्फ कलाकार की मजबूरी नहीं, मेकर्स की होती थी, प्रोड्यूसर्स की होती थी। आज जो सिस्टम बदल चुका है कॉर्पोरेट 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 कल्चर के वक्त में, दौर में बहुत कुछ ऐसा होता है जो आप कई बार क्रिटिसाइज कर जाते हैं, बट मेनली आप बहुत तारीफ भी करते हैं कि बहुत बढ़िया है, सिस्टम ठीक हो गया है, फाइनेंस का सिस्टम ठीक हो गया है। पहले जो होता था, कहीं अगर एक शेड्यूल में आप पिक्चर करना भी चाहते थे, हुए हैं कुछ, और ये बी आर चोपड़ा साहब की फिल्म थी इत्तेफाक, एक शेड्यूल में हुई थी, मैंने सुना है। लेकिन उस समय जब करते एक शेड्यूल में, तो आपको फाइनेंस नहीं आता था। वो लोग कहते थे अच्छा, फिर जो है फाइनेंसर कहता था कि पूरी पिक्चर बन जाए तभी भेज देते हैं, कोई बात नहीं, जल्दी क्या, आप एक ही शेड्यूल में तो कर रहे हो। इसलिए कई बार मजबूरी में भी आपको कई शेड्यूल में बांट कर करना पड़ता था, और जब बांट कर करते थे ताकि उसी हिसाब से फाइनेंस आता था, फिर गाड़ी आगे चलती थी। इसीलिए कई बार 3-3 4-4 शिफ्ट में उनका भी कर दो, उनका भी कर दो, उनका भी कर दो। आजकल हमारे बच्चे जो हैं, चाहे यंगर जनरेशन जो है, और ये नए स्टार जितने उभर कर आए हैं सामने, सोनाक्षी और इनके तमाम लोग, ये लोग अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। क्योंकि अब सिस्टम अगर मजबूत है, इनको पीछे मजबूती दे रहा है, फाइनेंस की भी, हर चीज की, तो फिर ठीक है, एक में करने में क्या हर्ज है। तो एक में पहले लोग देखते हैं शेड्यूल क्या है, साल में एक फिल्म की, चाहे साल में 2 या 3 फिल्में की, 3 महीने में एक फिल्म खत्म कर दी, 6 महीने में दूसरी फिल्म खत्म कर दी। उसी हिसाब से ये लोग करते हैं, और इसी हिसाब से अपने आप को बिजी रखते हैं। हमारे वक्त में तो इन सारे मल्टीपल शिफ्ट्स का जो रिकॉर्ड तोड़ा था हमारे सीनियर और बहुत अच्छे दोस्त और लेट एंड ग्रेट शशि कपूर ने तोड़ा था। शशि कपूर साहब को तो हमारे जो ग्रेट शोमैन, जो इतने बड़े मेकर, राज कपूर साहब, उन्होंने तो उसका नाम टैक्सी ही रख दिया था, कहा था वो तो टैक्सी है, हायर कर लो, यहाँ से वहां से वहां। ये तो टाइम मैगजीन में भी आया था। सो उस समय ये बात थी। अभी जो है सिस्टम में मजबूती आ चुकी है, फाइनेंस में कमजोरी नहीं है, आपको लोग सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग है आपका, तो फिर उसी का आप अच्छा फायदा उठाते हुए हमारे स्टार्स जो हैं, चाहे हमारे मेकर्स जो हैं, हमारे डायरेक्टर्स जो हैं, वो फिर शेड्यूल को उस तरह रखते हैं कि पहले एक ही जगह कंसंट्रेट करके, एक ही जगह, ताकि कई लोग हमारे एक्टर्स स्टार्स जो हैं, कई बार अपना गेटअप जो है, कोई ने दाढ़ी रखी, किसी ने बाल बढ़ाया, तो जी, चाहते उसी में वो पहली फिल्म हो जाए उनकी। सिर्फ ये दाढ़ी नहीं, दूसरी वेट बार बढ़ा लेते हैं, 15-20 किलो बढ़ा लिया, 20-25 किलो कम कर लिया पर फिल्म। वैसे तो ज्यादा लोगों के वेट बढ़े ही हुए हैं, वो प्रोपेगेंडा में कहने में काम आता है कि हमने इतना वेट बढ़ा लिया। लेकिन हाँ, जो लोग करते हैं, चंद लोग जो करके दिखा देते हैं और फिर कम कर देते हैं, वो सराहनीय तो है। बट मैं इसको बहुत अच्छा क्रैश कोर्स को बहुत दाद नहीं दूंगा। ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता है अगर सही तरीके से ना किया जाए तो। बहरहाल जो आप कह रही हैं, जो लोग ऐसा करते हैं, वो वाकई बहुत ही प्रशंसा के काबिल हैं, और हम उनकी बहुत सराहना करते हैं। शत्रु जी, एक अनदर थिंग, वो जो मिलेनियल्स थोड़ा आसानी से करने लग गए हैं, ये आई एम टॉकिंग आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ माय डिस्कशंस विद अ लॉट ऑफ फिल्म मेकर्स। बहुत लेजेंडरी फिल्म मेकर्स जो काफी सीनियर हैं, डायरेक्टर्स हमारी इंडस्ट्री के, वो ये कहते हैं कि आजकल के मिलेनियल्स
बहुत आसानी से फिल्म को रिफ्यूज कर देते हैं. लाइक यू नो, एक there used to be a certain respect which, and I'm not saying that these people are not respected by the youngsters, but the youngsters are perhaps not insecure, and therefore are very quick at saying no to films of big banners, big production houses, if they just don't get the feel from the script. So, Sonakshi, first let's have you come in, and have you refused any films that came with the support of really big banners, but then somehow you could not relate? I'm not asking you for names, but what is the one thing that makes you decide in favor of a script? No, absolutely. I think I'll speak for myself. I don't know about others, but for me, it's very important that I enjoy the work that I'm doing. If I don't relate to a script, if I don't connect with it, if I don't feel like I will be able to, carry off the character that they want me to play, I will say no. There are a lot of reasons that you should say no, and I feel that saying no for the right reasons, reasons that is absolutely okay. And I feel that today even filmmakers come with that bandwidth that, if they're offering a film to someone, they're okay to hear a yes or a no. They're very open that way. They have their options ready. They move on. It's not like, if somebody says no, you won't make the film, you will also go ahead and hire another actor, as I will work with another maker if I say no to a script. So I think it's a very normal and a very okay thing to do, and you have to be able to enjoy the work that you're doing, and because you're going to be committed to that project for a very long time. तो अगर आप वो प्रोसेस एंजॉय ना करें तो कोई मतलब नहीं बनता ऐसे काम करने का. जी, शत्रु जी, आप से अगर my direct question would be that, do you think your time was a better time to be an actor, or is Sonakshi's time a better time to be an actor? What would you say? ये कहना मुश्किल है. हर टाइम का अपना प्लस अपना माइनस होता है, और पिक्चरें नहीं करने के कई कारण होते हैं. जैसे सोनाक्षी ने कहा, अगर कंफर्टेबल नहीं है तो वो भी एक कारण है. कई बार हमारे टाइम में जब भी आपने कहा 3-3 4-4 शिफ्टें करते थे, अगर बहुत बिजी थे तो उस वक्त होता था कि डेट्स की कमी हो गई. कई फिल्में, मुझे आज तक उसका अफसोस भी है और खुशी भी है. अफसोस इसलिए शोले फिल्म नहीं करने का, पर शोले अगर नहीं की तो इसका अफसोस भी है, क्योंकि मैं बहुत बिजी था, बहुत फिल्में कर रहा था, उतनी डेटें नहीं दे सकता था जितनी डेटों की जरूरत थी. उसमें अनगिनत डेटों की जरूरत थी, और मैं उतनी डेटें नहीं दे सकता था उस वक्त. इसलिए मुझे अफसोस है कि वो फिल्म नहीं कर सका शोले. लेकिन साथ ही साथ इस बात की खुशी भी है कि मैं अगर नहीं कर सका तो देश का नेशनल आइकॉन और हमारा इतना अच्छा बेहतरीन दोस्त अमिताभ बच्चन को इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला शोले से, कि आज वो कहां से कहां पहुंचने में, उड़ान भरने में उनको बहुत आसानी हुई शोले के जरिए. उसी तरह मान लीजिए दीवार में नहीं कर सका, उसके कारण कुछ और थे. दीवार अगर हमारे पास थी, हमारे प्रोड्यूसर थे लेट मिस्टर मोहन खन्ना, उनके साथ या राइटर्स के साथ सलीम जावेद इतने अच्छे लोग थे, टैलेंटेड लोग, इनके साथ शायद कुछ कारणों से बात नहीं बनी, तो स्क्रिप्ट फिर वहां से मेरा ख्याल उसके बाद चली गई यश चोपड़ा जी के पास, और उनके साथ दीवार नहीं की मैंने. तो कारण कई बार अलग अलग होते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उससे मेकर से हमारा कोई झगड़ा हो गया. उन्हीं यश चोपड़ा के साथ हमने काला पत्थर की बाद में, जिसकी बहुत तारीफ हुई, बहुत प्रशंसा हुई, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, एडमायर किया. तो ये अब की जनरेशन में जो सोनाक्षी कह रही हैं, और बहुत सारे कारण होंगे. लेकिन कभी ये दोष देना कि आज के कलाकार अच्छे नहीं है, चाहे पहले वाले महान थे और अभी वाले ये नहीं है, सबका अपना अपना दौर होता है, सबकी अपनी अपनी खूबियां होती हैं, और शायद सब में कुछ अपनी अपनी खामियां भी होती हैं, और ये वक्त के साथ चलता रहता है. Very true, very true. And actually that brings me to the mahal on the sets, which is also a very important topic in then and now. And Sonakshi, you must have heard stories about how there used to be an era where big actors would come in as late as 3 hours, 4 hours from their appointed time at the shoot. और वो तो भी सब स्माइल के साथ मतलब काम चालू हो जाता था, जो आज आप नहीं देखोगे. If an actor is called
asked to come out of the van because the shot is ready, people do come out, and there is a collective responsibility to that. So so how do you perceive that change? And then Shatruji, please tell me some anecdote about बहुत late 3 घंटे 4 घंटे जो लोग लेट आते थे, कैसे मैनेज करते थे फिल्म मेकर्स उस टाइम? देखिए उस वो वक्त तो उनमें से एक है। मैं तो मुझे लोग बताते हैं सोनाक्षी मैं तो उस वक्त बताती नहीं हूँ थी, क्योंकि वो वैसे लेकिन ये थे, बता मैं ओवर पंक्चुअल हो गई हूँ। सोनाक्षी बिल्कुल ओवर पंक्चुअल, यानी मेरे जैसे लेट फादर थे, वो बहुत अमेरिका के पढ़े लिखे थे, तो अमेरिका से पढ़ लिख कर आए थे, तो उनको एकदम इतने पंक्चुअल थे कि अगर 6 बजे का टाइम होता था तो 5 बजकर वो समझिए 55 मिनट पे पहुंच जाते थे, और घंटी 6 बजे ही बजाते थे, इतने पंक्चुअल थे। मैं उसके बाद देखता हूँ ग्रैंड डॉटर सोनाक्षी में वो एकदम इतनी पंक्चुअल है। मेरे बच्चे भी लव कुछ भी हैं, बट लव ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा सोनाक्षी है। अब रही मेरी बात, मैं तो अपनी शादी में ही 3 घंटे लेट पहुंचा था, और शादी में ही लेट पहुंचा था सब लोग कहते हैं। और उसके बाद कई बार शूटिंग्स में इतना इतना लेट पहुंचता था, एक आदत थी, लेकिन ये आदत मेरी नहीं थी। मेरे बारे में ये भी मशहूर था कि अगर लेट आता हूं तो सारा काम खत्म करके, और शायद समय से पहले खत्म करके वहां से निकल जाता था, क्योंकि कभी किसी को परेशान नहीं किया, किसी बड़े स्टार की तरह कभी नहीं कहा कि आज मेरा मूड नहीं है, या आउटडोर जाने की बात हुई तो आउटडोर पर नहीं गया, लोग इंतजार करते रह गए, या आउटडोर पहुंचकर हमने कहा नहीं आज ये समा, ये वातावरण, ये सीन आज करने का आज मूड मूड नहीं नहीं है, बन बस रहा है। मूड नहीं। वो सब कभी नहीं किया हमने, कभी नहीं। यहाँ तक कि बुखार रहा तो भी पहुंच गया मैं कई बार। एक बार गुलजार साहब की, मेरे अपने फिल्म जो बहुत मशहूर हुई थी और जिसके डायलॉग्स भी बहुत मशहूर हुए, उसमें चला गया, मैंने कहा मैं चश्मा पहन के कर लेता हूँ एंट्री सीन जो था, एंट्री ऑन द स्क्रीन। गुलजार साहब ने कहा नहीं, आपकी आंखें और ये सब चाहते हैं कि उसको अच्छे से एक्सप्लॉइट करें, और आप अभी ऐसा जब ठीक हो जाइएगा तो कल परसों आइएगा। ऐसा हुआ है, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं कहा। आजकल के जो ये स्टार्स हैं, और सोनाक्षी भी हैं और लोग भी हैं, अक्षय कुमार हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत पंक्चुअल हैं, और मैं उनको देख के वाकई बहुत ही कदर करता हूं, बहुत ही लगता है कि सही माने में ट्रू प्रोफेशनल्स हैं। क्योंकि लेट आना कोई अच्छी बात नहीं है, मैं उसकी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको सुना भी होगा आपने, ऐसे ऐसे स्टार थे जो, मूड की बात तो अलग में, मैं तो 2 1 3 घंटे अगर लेट जाता था कई बार, वो लोग 4 4 6 6 घंटे। मैं एक फिल्म, बहुत बड़ी फिल्म कर रहा था जिसका लीड नहीं कर रहा था, और उसमें एक बहुत मशहूर कैरेक्टर आर्टिस्ट जो थे, लेकिन वो भी किसी स्टार से कम नहीं थे, बहुत जबरदस्त थे। और मेरे सवेरे 10 11 बजे शूटिंग थी, मैं तो 11 बजे करीब पहुंच गया था, और वो रात के करीब 8 बजे आए, 8:30 9 बजे। और जो अवस्था थी, हुई जो हालत थी, या हालात जो थे उस वक्त, वो शूटिंग के लायक तो नहीं थे, कई लोग नाराज भी हुए, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं। बट रिजल्ट जो उन्होंने दिया, अल्टीमेटली अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज द रिजल्ट। रिजल्ट जो दिया उन्होंने, वो गजब का रिजल्ट दिया। लेकिन मैं कभी भी इस बात को आज नहीं कहूंगा, और ना मानूंगा, ना चाहूंगा कि हमारे ये यंगर जनरेशन है, चाहे ये लोग जो कर रहे हैं, कभी ऐसा करें नहीं। मेरे दिमाग में तो मशहूर हूं, मैं या बदनाम था लेट आने के लिए, लेकिन अभी शायद मशहूर हूं कि पॉलिटिक्स में जाने के बाद लोग बिगड़ जाते हैं। गलती से मैं चंद लोगों में से हूं, भाग्यशाली, जो पॉलिटिक्स में जाने के बाद सुधर गया हूं और काफी पंक्चुअल हो गया हूं। आज आपके 6 बजे का इंटरव्यू था, और मैं भी 5:57 में यहाँ उपस्थित था आपके लिए। वेल थैंक यू सो मच। आप मशहूर थे और मशहूर ही हैं, बदनाम वर्ड तो हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। Shatruji, you've been such an inspiration. Sonakshi, the camaraderie on the sets, I think, with the younger generation as things have evolved, has been beautiful, because I've been fortunate to be on some of the sets where you've been shooting, and I remember, I think it was around Mission Mangal's shoot when I was visiting, and I saw that everyone was having lunch together. इनफैक्ट आपकी मदर ने बहुत ही बढ़िया घर का खाना भेजा था पूनम जी ने,
and the entire unit was completely thoroughly enjoying it. So that's another change that we've seen, because I've only heard stories about how earlier people would not interact much while the shoot is going on. सब अपने अपने में रहते थे. पर आप लोगों ने ये जो culture develop किया है, what do you have to say about that? No, in fact, I don't believe that that's true, because I've heard stories from my mother when, she also used to act, from Papa, that, पहले तो vanity vans नहीं होती थी, तो सब लोग एकदम मिलजुल के ही रहते थे, सब लोग साथ बैठते थे. So I've heard these stories. So right now, in fact, my mom, when she used to come to set, she used to be like, अभी तुम लोग अपने वैन में बैठे रहते हो, and you guys break हो जाता है सेट पे, तो आप एकदम अंदर भाग जाते हो and all. Uh, वैसे अगर मैं थोड़ा open and इंटरवीन करूं 1 मिनट के लिए, ये कल्चर जो है इसका आज तक रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाएगा. ये जो मिलजुल कर इकट्ठे खाना खाने का, ये राज कपूर कल्चर जिसको लोग कहते हैं, जिन्हें शोमैन, ग्रेट शोमैन, ये इनके यहाँ होता था. और हमारी खुशकिस्मती थी कि हमने राज कपूर साहब के साथ भी काम किया, और खान दोस्त फिल्म की, चाहे ऐसे भी जब आर के स्टूडियो में शूटिंग करते थे, तो उनकी अपने फिल्मों के तमाम टेक्नीशियन से लेके सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते थे. और उसके बाद कई बार तो मैंने देखा खुद राज जी को सर्व करते हुए सबको, ये लो जी, ये लो जी, ये आप खाएं, ये ले, बहुत अच्छा बना, ये बाहर से मंगवाया, ये कहाँ से मंगवाया है, उसका सारा ब्रांड नेम और बैनर के साथ बात करते थे. वो तो गजब का सिस्टम. ठीक सोनाक्षी कह रही हैं, ये पहले खूब चलता था. पहले हम लोग के वक्त में तो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में हम लोगों के तो वैनिटी वैन होती ही नहीं थी. तो ये होता था लंच ब्रेक में आ जाइए, कभी कभी किसी की तबीयत ठीक नहीं रही तो चलो अपने मेकर ऊपर में खाना खा लिया, अकेले हो, बट जनरली हम लोग सब इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे, और ये बड़ी अच्छी बात थी. yeah. बड़ा अभी भी मेरा ख्याल है वो चल So I रहा है, think तो और अभी अच्छी भी वो बात है. होता जी, और अभी भी चल ही रहा है, बट आई थिंक वो टाइम पे शायद उतना पता नहीं चलता था. अभी तो सब लोग सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, फोटो क्लिक कर देते हैं, सेल्फी क्लिक कर देते हैं, बिल्कुल. एंड सो दैट्स व्हाई यू आर मोर अवेयर ऑफ इट. होता है, ऑफ कोर्स होता है, बट आई डोंट थिंक देयर दैट मच ऑफ अ चेंज. बट इट्स बेटर, एक अच्छा माहौल बना रहता है सेट पर, सब मिलजुल के रहते हैं, बिकॉज यू आर वर्किंग विद दोस पीपल फॉर सो लॉन्ग. तो एक अच्छा माहौल बनाने में ही आई थिंक समझदारी है, एंड अच्छा भी लगता है काम करने को. तो सो आई जस्ट फील इट्स अ नाइस थिंग टू डू, टू बी एबल टू सिट एंड इंटरैक्ट एंड learn from people, meet new people, understand where they come from, what they do. um, so yeah, it's nice to just be like that. I feel that creates a very nice atmosphere on set. Positive atmosphere. That's so true. We have very little time left, so I'll just take some audience questions here. And Sonakshi, you mentioned social media, and therefore Aditya wants to know if this whole need to develop a thick skin, because there is just so much of trolling that happens on social media, which Shatruji's generation was very, very insulated from, I would say, apart from articles in Stardust and Filmfare and some magazines which used to bother them perhaps. जब उस time gossip होता होगा, at least आपको daily basis पे gossip and trolling वो सब उनको face नहीं करना पड़ता था. So Sonakshi, what is it that you do to sort of turn yourself immune to this? And then we'll come to Shatruji about social media and how things have changed. I think it's very important to just have a positive attitude about things, to be certain of yourself, to be sure of yourself, to not let people who don't even know you affect you. They don't know what you're going through, they don't know where you come from, they don't know how hard you work, they only see what's out there and make their judgments. So it's very important to not to be able to not have these people affect you. It comes with time. Like initially, like when social media started, I think Twitter started, and I also joined it in 2010 when I was shooting my first film. तो काफी positive experience रहा मुझे, एक ऐसा कर पा रही हूँ. But then over the years, it just started getting very toxic. I don't think people understand. These platforms don't have the correct resources, or I think rules and regulations
to stop people from abusing the platform in any way, and people on platform. So I think all these things just add to it. You just have to, be able to shut out the negativity and move on with your life. Shatruji, social media and your equation with social media now, and how easy was it to be insulated from this social media trolling at the time when you were active in cinema? No, I tend to agree with you when you say that social media, or rather on Social daily media at that basis, point of in time. a It's a very fairly sometimes recent torture thing. on daily basis. कॉम्प्लीमेंट तो आता ही है, लेकिन टॉर्चर बहुत ज्यादा इजी वे उनको मिल गया है कई लोगों को, खासकर जो शो बिजनेस में है और पॉलिटिक्स में है, वो इजी टारगेट भी है। जो कल तक जिसकी पहुंच नहीं होती थी, वो सोशल मीडिया के जरिए आप तक पहुंच रहा है, और ना ही सिर्फ पहुंच रहा है, अपनी फ्रस्ट्रेशन में कई बार गालियां भी दे रहा है, कई बार उल्टी सुल्टी बातें भी कर रहा है जो आप डिजर्व नहीं करते हैं। तो इसमें बेस्ट क्या होगा, खासकर हम जैसे लोग, जो बहुत सारे बहुत बहुत लोगों का मानना है कि हम जैसे लोग थोड़े बोल्ड भी होते हैं, तो ऐसे बोल्ड लोग यही करते हैं, जो बेस्ट पॉसिबल वे है वो है कि इग्नोर करते हैं। अब हमारे जो सोशल कॉम्प्लीमेंट्स आई, उनको तो सलाम कर लिया, और जहां उस तरह की गाली गलौज या गंदी गंदी बातें आई, उनको देखते ही नहीं, आगे बढ़ो, मूव ऑन, आगे बढ़ो। अब यही दस्तूर है सोशल मीडिया का आज की सोसाइटी में। तो क्या करेंगे आप? अब जहर तो रोज नहीं पिएंगे ना आप। तो जो जहर उगल रहे हैं, जो जहर आपको ऊपर फेंक रहे हैं, जो उगल रहे हैं, उनको करने दो अपना काम, इग्नोर करो, जैसे सोनाक्षी ने किया वैसे मैं भी करता हूँ, एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल वैसा ही करते होंगे। जी, Sonakshi, actually, what he's saying makes the perfect sense. And no matter in what times you are, I think if you know the art to ignore, then any kind of negativity can't affect you. Correct. Yeah, that's true. And I think honestly that's the most respectable thing to do also. Um, it's better than stooping down to their level and giving it back in a way that they're giving it to you. Even as undeserving as it may be, it's just better to ignore Ignore. So true. or block. Correct. Wonderful. Another audience question is pertaining to OTT. And Shatruji, एक वक्त था जब स्टार्स, जब फिल्म स्टार्स बन जाते थे, तो वो तो टेलीविजन की तरफ भी नहीं देखते थे, because it was beneath a film star to do television. And then now an era has come where, thanks to web series and OTT, there's so many avenues that have opened up, that those boundaries between whether you're a film star or a TV actor or a web series or an OTT actor, वो खत्म हो गई हैं। तो आप इस चेंज जो मिलेनियल्स की लाइफ में आया है, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छा चेंज है, और खासकर टेक्नीशियंस के लिए, और उससे भी बढ़िया मैं कहूंगा कलाकारों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सामने उभर कर आया है। ये हमारे वक्त में था ही नहीं। पहली बात तो कुछ स्टार्स की नादानी होती थी, कि ना समझ होते थे, जो कई बार कहते थे कि टेलीविजन इतना इंपॉर्टेंट मीडिया है कि हर घर तक पहुंचा रहा है आपकी बातों को, और उसको आप बिल्कुल। इग्नोर कर रहे थे उस वक्त। मैंने तो इनकरेज किया था, मैंने तो फिल्म भी, टेलीविजन फिल्म पे कुछ दिनों के लिए आया था देवता, या हमारा एक बहुत पॉपुलर शो आया था, कई सालों चला, शॉटगन शो, जो आज बहुत उस तरह के शोज देखते हैं आप पे, वो स्टार्ट तो हम लोग का ही किया हुआ था। शशि रंजन ने उसको डायरेक्ट किया था, और हमने उसमें मेन एंकर में ही था। शॉटगन शो जी। जो लेटेस्ट इश्यूज को लेकर आते थे और उस पर डिस्कस करते थे, उस पर अपने ओपिनियन वगैरह रखते थे, वो बहुत पॉपुलर हुआ था। आज जो है लेकिन साथ साथ अफसोस भी होता था, मैं कई बार कहता हूँ होता है, कई बार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि अगर मेरे वक्त में हो गया होता, जो हम लोग स्टार्ट किए थे, चाहे हमसे और भी सीनियर धर्मेंद्र वगैरह जो बाकी लोग थे, तो मैं समझता हूँ हमारा स्ट्रगल थोड़ा आसान हो गया होता। हमें कुछ और प्लेटफॉर्म ऑप्शंस होते हमारे पास, जो अभी उस वक्त नहीं थे। यानी फिल्मों में था कि यही करना है और यही पार निकलना है, नहीं तो यही डूब जाना है। ये स्ट्रगल पीरियड में बस एक ही तरफ हम फोकस थे, फिल्मों की ओर, और यही रास्ता था हमारे लिए। लेकिन आज हाँ, बहुत बढ़िया, वह क्या फिल्में दे रहे हैं लोग।
मैंने थोड़ी देर पहले मनोज वाजपेयी की फैमिली मैन की, या आपका पंकज त्रिपाठी की, या बहुत सारे लोग जो आज चमक कर आए। एक हमारी लड़की है, हमारी बहुत अच्छी महारानी, उसने किया उसी प्लेटफॉर्म पे। हुमा कुरैशी ने जी गजब का जी काम किया, और गजब का उसका रोल है, और गजब का प्रेजेंटेशन है जैसे किया महारानी। जो देखा हमने वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे एंड पॉलिटिकल पर्सनैलिटी पे। तो ये सब चीजें हमारे वक्त में जब नहीं थी, तो आज जब हो रही हैं तो ईर्ष्या तो नहीं होती है, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकता हूं कि कभी कभी लगता है कि काश हमारे वक्त में भी होता। बहरहाल हमारा बहुत शुभकामना और शुभाशीष है इन तमाम लोगों के लिए, और तमाम ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए जिसके जरिए हमारे समुदाय को, हमारे लोगों को, हमारे टेक्नीशियंस को, हमारे मेकर्स को, हमारे कलाकारों को इतना बढ़िया सजने सजने का, संवरने का और चमकने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल। सोनाक्षी, मैं थोड़ा बहुत घुमा के ले आई हूँ शत्रु जी को ये कहने में that this is the better time to be an actor because there are so many newer opportunities and possibilities. Done. You were No, doing but web but I series. agree with him. Yeah, no, Yeah. absolutely. No, So I tell agree me, with him. You know, so many avenues have opened up, you know, and there's literally work for everybody. In fact, surplus, there. And that's such a great thing to happen, you know. And the kind of content that they're making. In fact, I've just finished a series that is bound to release very, very soon. And I had a great time shooting it. You know, it was a wonderful experience. And I'm really happy that, you know, not only people in India will be able to see it, but it's going to reach out to a global audience. absolutely. And Global audience, you yeah. know, that's what I'm saying. Like the world has become so small now, and with the you know whole boom on OTT platforms, I think we're able to reach out to a whole lot more people. So that's that. What can be better for an actor than that, you know? Amazing, amazing, and good luck with the web एक series. एक मिनट और बस, जी पार्टिंग भाई, जी भाई। सेंटेंस कि ये यहाँ पे आपने ठीक कहा, एक्टर होने का सबसे बढ़िया मौका आज है। आज आप कह सकती हैं, लेकिन स्टार्स बनने का और स्टार्स बन के चमकने का और लॉन्गेविटी का और इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट कि सालों साल जो लोग याद रखते थे स्टार्स को, उनके लिए मौका कल था। जो कल के स्टार्स थे वो शायद आज ऐसा कोई भी स्टार नहीं है जो वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके और वो लॉन्गेविटी लेकर चल सके। आज जो एक्टर्स हैं जो कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी सोनाक्षी का नाम लिया, लुटेरा, चाहे महारानी में हुमा कुरैशी का नाम लिया, चाहे हमारे अक्षय कुमार, बाकी इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं। रणबीर है, बहुत बढ़िया लड़का है, रणबीर सिंह भी, और रणबीर राज कपूर भी, बढ़िया बढ़िया लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं। लेकिन इनका देखना पड़ेगा कि वो इम्पैक्ट जो दिलीप कुमार का, धर्मेंद्र का, राजेश खन्ना का, अमिताभ बच्चन का, और मैं अभी अपना नाम नहीं ले रहा हूँ, और इनका वो शत्रुघ्न सिन्हा इम्पैक्ट का रहता मैं है कि लेती नहीं रहता हूँ। बिल्कुल। तो मैंने ऐसा सोचा भी कैसे सोनाक्षी that for a few seconds मैं बाजी पलटूं because there is absolutely no matching your dad. उन्होंने एक सेंटेंस में ही ये बात याद दिला दी कि वो टाइम के सुपरस्टार्स जो है उनको मैच कर पाना किसी भी सेंस में पॉसिबल नहीं है. But we've run out of time. But just one final thing that I've been meaning to ask you, because a lot of youngsters are watching this and are looking at both of you for inspiration. So just one message if you have to give to the aspiring actors and filmmakers, or the millennials, Sonakshi, what would that be? And then Shatruji, what would be your advice to them? Papa, would you like to go first? Yeah, the same advice I have given to my children, I've given to the apple of my eye, Sonakshi also, same advice, कि in this competitive world, you prove yourself better than the best. Or in case you don't prove yourself better than the best, then try and be different from the rest. अपने आप को सबसे बेहतर साबित करके दिखाओ। ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। अपने आप को सबसे बेहतर साबित करके दिखाओ, और अगर अपने आप को सबसे बेहतर साबित करके नहीं दिखा सकते तो फिर अपने आप को सबसे अलग साबित करके दिखाओ। यानी क्या बात आप रोल मॉडल बनो, आप ओरिजिनल रहो, आप कॉपी मत करो, आप ऐसे बनो कि लोग आपको देख के इंस्पायर्ड होकर आपको रोल मॉडल मानते हुए आपकी कॉपी करें।
आप मत करो किसी की। ये मेरा एक हम्बल सजेशन और एडवाइस है। How beautifully said. See, these are really मैं golden भी words. मैं भी सेम चीज बोलने वाली थी, but then when he started speaking, I realized ये एडवाइस मुझे उन्होंने ही दी थी। और इन्होंने, इसलिए मैंने कहा But कि मैंने सोनाक्षी को भी वही I'd prepared my answer in my head, but then I'd forgotten where it had come from. That's where it came from. But yeah, he's so right, खामोश। you have to be you have to be true to yourself, and I think individuality is the most respected what do you call it, what is that word, Virtue? wow, I've brought individuality is the most respected thing that you can have, and I think people really appreciate it. And it's important to follow your dreams, all while staying true to yourself and who you are as a person. I think it keeps you sane, it keeps you happy, and that would be my advice. इसको थोड़ा सा एलोबरेट करें जो सोनाक्षी बोल रही हैं, कि आपने देखा होगा कि मुझको भी, सोनाक्षी को भी, कि जी। बहुत सारे लोग हमारी नकल करते हैं कई जगह, दूसरे दूसरे प्रांत में अलग अलग लोग, फैंस लोग, सब कुछ। यानी आप देखते हैं कि खामोश तो एक सिग्नेचर ट्यून बन चुका है। लोगों को आपने देखा है शत्रुघ्न सिन्हा की नकल करते हुए या सोनाक्षी सिन्हा की नकल करते हुए, लेकिन आपने आज तक शत्रुघ्न सिन्हा को या सोनाक्षी सिन्हा को किसी की नकल करते हुए नहीं देखा है। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने आप को, अपनी इंडिविजुअलिटी को, जो सोनाक्षी भी कह रही थी, उसको रेस्पेक्ट करो, उसको मेंटेन रखो इंडिविजुअलिटी को। आप कॉपी मिमिक्री करने नहीं आए हो, आप इंस्पायर्ड हो जाओ, आप इंस्पिरेशन लेकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ, लेकिन अपनी इंडिविजुअलिटी को आप कायम रखो। और इसी तरह से मैंने कहा, बेटर देन द बेस्ट और बी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। Amazing, amazing words to end this beautiful session on, because I'm sure people would take the gist, the essence out of what you've said, Shatruji, and it's going to change lives. I can already see Thank that you. happen. And on that note, Sonakshi, Shatruji, thank you so very much for taking out the time for the Hindustan Times session, and forever be grateful to you for this. Thank you very much. You are wonderful, and long live Hindustan Times. Thank you. Thank you so much. Thank you, Sonakshi. Thank you, Sonal. This was truly wonderful. My pleasure. My pleasure. Thank See you. You have a you. good day ahead.